Hello everyone, this is Amrit Pal, founder of Amrit Pal Vision. Today I am interviewing one of my students, Mr. Taktesh Tripathi, who recently got his German student visa approved from German consulate Mumbai. Taktesh, how you are feeling today? I'm feeling absolutely great, sir. Really excited. सर आज इसका जर्मन स्टूडेंट वीजा आया है, आपको कैसा लग रहा है? ये उसकी बहुत बड़ी तपस्या का उसको परिणाम मिला है और उससे हम लोग, वो तो एक्साइटेड है ही है, लेकिन हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि ड्यू टू दिस पेंडेमिक कोरोना उसका वीज़ा आने में डिले हो गया, लेकिन गॉड इज Everything was on time. या इन टाइम एंड गॉड हैज़ अ गुड प्लान फॉर हिम मे बी. So at this moment we are so much excited to send him to Germany. So Taktesh, tell our viewers about your profile, Yeah. in which university you are going and which program you are going, and you are going to German Thought program. So why Yeah. German Thought, why not English Thought program? Okay, yeah. Hello guys, my name is Taktesh Tripathi and I've completed my Bachelor's of Engineering in 2019 from LG Institute of Engineering and Technology, and I'm going to Germany to pursue autonomous systems from University of Stuttgart, and it is a complete German Thought program and I'm planning to catch my intake in March 2022. Good. So Taktesh, as you know that many students are going to Germany in English Thought program and they come to us also. So Yeah. I just want to go to Germany in English Thought program, and they don't prefer to go to Germany in German Thought program. Yeah. But you came to me and you told me, sir, I just want to go in German Thought program. Please avoid all the English Thought program in my university list. Yeah. So why is it so? Why you are preferring to go to Germany in German Thought program? I could have done that in English Thought program, but as I've already done up to Bachelor's in English medium of instruction, so now if I can have the opportunity to study German language to pursue my master's studies, in which I want to have the opportunities like research programs and practical oriented programs. So I think that going through German Thought program can lead me to greater and greater opportunities which I could never think of, and can really make me conquer my field. So yeah, going through German Thought program works for me. Yeah, thank you. So about his profile, he has very good CGPA. He done his IELTS with 7.5 bands. He completed his German language level of A1, A2 and B1. Yeah. And then also he has preferred going to Germany in German Thought program, because I like students who are going to Germany in German Thought program. Yeah. So Taktesh, tell our viewers about your future plans, like as soon as you reach Germany, what you are going to do, because you don't have the German language till C1 or type C1 Hochschule. Yeah. So what's your future plan in Germany right Yeah. now? As I have my visa approval and I'm flying on 22nd of September, so I'm really excited for that. So as soon as I'll reach to Berlin, I'll be joining my language school to continue my further levels in German language, and then I'll be giving my language entrance examination. So after securing that, I'll be getting get myself admitted to my university to pursue my master's studies. Okay, so he want to go to University of Stuttgart, and the program which he is going is completely taught in German. So that requires C1 Hochschule or TestDAF. So before going to Stuttgart, he is going to Berlin, and there he will finish his B2 and C1 level. Also, he will be giving his TestDAF in Berlin. Yes. So after that, he is going to Stuttgart to pursue his studies. It's a pathway program where student doesn't have the language requirement till C1 level, then student go to a language school in Germany, they finish their language, and then they go to their final universities where they are going to study their masters, right? Yes, absolutely. Taktesh, as you came to us in 2019 and you have written in the inquiry form that you have the other countries option too, like Canada, US and Germany. Yeah. So why you have selected Germany and why you have ditched the countries like Canada, US or UK? Yeah, it's just kind of simple fundamental thinking. When it comes to automobile engineering, the first country comes to mind is Germany, because as it is a leading pioneer in my field, so if I can pursue my studies there, I can definitely have a lot more opportunities than any other countries. And the field which I have selected to pursue my master's studies, they are providing me practical oriented programs, research oriented programs. So I think that Germany is the only country which can lead me a way to which I can conquer my field. So Taktesh, you were learning A1, A2 German language. Also, you have learned B1 with us. Yes. So how was your experience of learning German language with Amrit Pal Vision? Well, I would first like to state that I am the exclusive student of Amrit sir, because I have been with them since 1.5 years, almost 2 years.
So I just can't put that experience in words. But for language, I can definitely say that they provided us a German faculty. We were like 10 to 12 students, and German faculty really created an environment, a surrounding through which we can grasp the language easily and quick. And I could feel satisfied, convinced that I am in good hands. So yeah, experience. I still can't put that in words, but it was really something great. थैंक यू एंड सर आप हमारे पास आई रिमेंबर स्टिल रिमेंबर इसका इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ था इन 2019 एंड आप हमारे पास आए थे, आप तीनों जने। तो मुझे बताइए कि आप अमृतपाल विजन को आपने क्यों सिलेक्ट किया, किसने आपको रिकमेंडेशन दिया, क्यों आप एक ही बार आप किसी और कंसल्टेंट के पास नहीं गए? मुझे आज भी याद है कि आप सेम डे आए और सेम डे आपने रजिस्ट्रेशन किया था। तो एक्चुअली उसमें ऐसा है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लेना वो मेरा एक पैशन था, जो कि बाद में तख्तेश को भी रियलाइज़ हुआ। और मैंने जो पहले बताया कि मे बी द ग्रेट गॉड प्लान, तो उसका जो एडमिशन प्रोसेस हुआ बैचलर्स में, वो एडमिशन प्रोसेस में भी उसको 2 बार ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ही लगी और वो दोनों बार LGA यूनिवर्सिटी ही उसके लिस्ट में आई। तो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दी उसने ऑटोमोबाइल में। तो ऑटोमोबाइल जैसे ही दिमाग में आता है या इंजीनियरिंग में आता है तो तुरंत सेकंड थॉट पे जर्मनी आ ही जाता है, क्योंकि जर्मनी ऑटोमोबाइल में पायोनियर है। और आज की तारीख में कई ऐसी बड़ी गाड़ियां हैं जिसको इंजन जर्मन की बड़ी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। तो उसके दौरान में उसे मास्टर करवाना है, वो एक प्लान था। अब मास्टर के लिए कनाडा, पहले हल्की सी थॉट आई थी कि कनाडा जाएंगे, लेकिन मेरे बिजनेस सर्कल में बातचीत हुई तो वहाँ पे भी मेरे जर्मन के सोच को मुझे सपोर्ट मिला। और मेरे एक अच्छे मित्र ने मुझे बोला कि भाई उनका कोई मित्र का लड़का जर्मन गया हुआ था और वो अमृतपाल विजन के माध्यम से गया था। तो उन्होंने वहाँ से जर्मनी से उसके लड़के के साथ मेरे लड़के की बात कराई और उसने पूरा उसको गाइड किया कि भाई आप वहीं पे जाओ और आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। तो उसके बाद हमने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, और कनाडा का तो एक फ्लिक जैसा था कि भाई आया था 2 दिन में वो हवा होके निकल गया था। तो फिर आपके पास आए, आपने बड़ी अच्छी तरीके से जो एक्सप्लेन किया उसके खर्चे के बारे में, उसके स्टडी के बारे में, प्लस जर्मन फैकल्टी प्रोवाइड करने के बारे में, तो वो सारी चीज़ें हमें इतनी सेटिस्फाइड कर गई कि ऑन द स्पॉट फिर रजिस्ट्रेशन की बात हुई। और जो नेक्स्ट 1 वीक या 10 डेज़ के अंदर आपके क्लासेस शुरू हो रहे थे, उसमें उसको ज्वाइन करा के जर्मनी की तरफ आगे बढ़े। तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आप 1.5-2 साल से हमारे साथ कनेक्टेड है, इसने E1 A2 B1 किया, जर्मन लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लिया, फिर यूनिवर्सिटी में कंडीशनल एडमिशन लिया, और फिर कोरोना आया, फिर थोड़ा टाइम वीज़ा डिले हुआ और अभी हमारे पास वीज़ा आ चुका है। तो इस पूरे ड्यूरेशन में 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस आप हमारे साथ कनेक्टेड थे, आपको कैसा लगा सर? देखिए, रही बात एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस में तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके साथ का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं तख्तेश के बड़े भैया की हैसियत से आपको देख रहा हूँ। तो वहाँ पे एक फैमिली अटैचमेंट जैसा एक माहौल बन गया था। ये 2-2.5 साल में जो हम आपसे पहली बार मिले थे, और आज 2.5 साल बाद इस दौरान में कम से कम 50 बार हम रूबरू हो चुके हैं। आपकी नई ऑफिस के इनॉग्रेशन के दौरान में भी आए थे और आपने बाय हार्ट हमें इनवाइट किया था, और वो सारी चीज़ें एक फैमिली गैदरिंग जैसा फील करा रही। तो वो एक फीलिंग तो है ही है इंटरनली। दूसरा, जो आपका अप्रोच है वो एकदम एनवायरमेंटल है, एकदम फ्रेंडली है और एकदम कन्विंसिबल है। तो वो सारी चीज़ें पहले दिन से, जिस दिन पहली बार मेरी आपसे मुलाकात हुई, तो तब से आज तक मुझे उसमें कोई दो राय नहीं लगी। रही बात ये कोरोना पेंडेमिक और ये 1.5-2 साल वीज़ा डिलेड, होल्ड पे जाना और ये सारी जो कठिनाइयाँ थी, वो
सिर्फ हमारी कठिनाइयाँ नहीं थी, पूरे वर्ल्ड ने ये कठिनाइयों में से पास हर एक आदमी हुआ है, हर एक को कुछ ना कुछ क्षति भी हुई है, कुछ ने अपने स्वजन भी गंवाए हैं, लेकिन अल्टीमेटली लड़का थोड़ा डिप्रेशन मोड में जाए तो हम तो उसको एनकरेज कर ही रहे थे। उस टाइम पे आपने भी उसका मॉरल हमेशा बढ़ाने की कोशिश की, हमेशा आपने उसको मोटिवेट किया, वो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद आई। और ये 1.25 साल हमने बड़े इत्मीनान से कोई भी डिसीजन में परिवर्तन ना करते हुए या डाइवर्सिफाई ना होने का डिसीजन और स्टिक रहने का डिसीजन जो हमने लिया, और ख़ास तौर पे ये स्टिक रहने का डिसीजन मैं मानता हूँ कि तख्तेश का मेरे से ज़्यादा हो गया था। मैं बीच में टोटल विड्रॉल करके इंडिया में ही सेटल होने का एक बार आया था दिमाग में, बल्कि नाइट में आया, मॉर्निंग में वो वाइप ऑफ भी हो गया, लेकिन वो एक बार भी आया था। लेकिन तख्तेश का इंटेंस बहुत क्लियर था, उसका विज़न बहुत क्लियर था कि भाई मुझे और कोई कंट्री में नहीं जाना है, अगर जाना है तो जर्मनी जाना है, नहीं तो नहीं जाना है, मास्टर ही नहीं करना है। मतलब उसका एक गोल हो गया, और जो गोल बन जाता है आदमी तो फिर ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता, उसको देना ही पड़ता है, और ऊपर वाले ने दिया। मुझे आज भी याद है जैसे ही फर्स्ट लॉकडाउन आया, वीज़ा होल्ड पे गया, वीज़ा मतलब लग चुका था, फिर डिसीजन स्टैंपिंग का उनका पीछे हो गया, फिर यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर जो है वो एक्सपायर हो गया, फिर से एप्लीकेशन किया, फिर से ऑफर लेटर आया, फिर वीज़ा सबमिट करा, फिर वीज़ा अप्रूवल आया तो सेकंड लॉकडाउन आया। फिर उसके बाद सर आए, सर ने बोला सर जर्मनी नहीं करना है, आप रहने दीजिए, आप फाइल विड्रॉ कर लीजिए, हम कनाडा जाएंगे। मैंने बोला कि सर कोई बात नहीं, आप आइए, हम बैठ के बात करते हैं, क्योंकि सेकंड लॉकडाउन सबको पता है कि बहुत सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था वो फेज़। सर को मैंने समझाया सर टेंशन मत लीजिए, आप आ जाइए ऑफिस में। सर आए, बोले कि नहीं हमको अभी कनाडा ही जाना है। मैंने उनको फिर से समझाया, मैंने सर गिव इट अ लास्ट ट्राई, आप देखिए, क्योंकि देखो कनाडा का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको फाइल भी ऑनलाइन रखना है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, बायोमेट्रिक के लिए सिर्फ एक बार आपको VFS जाना होता है, बट जर्मनी में ऐसा नहीं है। और जर्मनी में ऑफर लेटर भी डिफर नहीं होते हैं, जैसे कनाडा में अगर इस इनटेक का ऑफर लेटर है वो नेक्स्ट इनटेक में डिफर हो जाता है। जर्मनी में पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई ऑफर लेटर है यूनिवर्सिटी का और उसी ऑफर लेटर पे आपने वीज़ा रखा है, बट अगर आपको वीज़ा उस ऑफर लेटर में नहीं जाना है और दूसरे ऑफर लेटर या दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो फिर से वीज़ा प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में जर्मनी में कंडीशंस अलग होती है। किसी में फिजिकल प्रेजेंस था, किसी ने ऐसा बोला कि नहीं आपको 15 अक्टूबर को आना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ऑफर लेटर आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो बहुत सारे कंडीशंस थे। तो मैंने तख्तेश को भी समझाया, मैं बोला तख्तेश आपको कनाडा जाना है। तख्तेश ने बोला सर नहीं, मुझे कनाडा नहीं जाना है, मुझे जर्मनी जाना है। मैंने सर को बोला सर मुझे 1 महीना और दीजिए, जस्ट गिव मी 1 मंथ एंड आपका वीज़ा आ जाएगा। और उसी 1 मंथ के ड्यूरेशन में इनका वीज़ा आया एंड यस राइट नाउ दे आर फ्लाइंग। सो सर आपको जो ये कनाडा का थोड़ा दिमाग में आया एंड देन फिर जर्मनी पे अपने वापस आए, क्योंकि उस टाइम पे ब्लॉक्ड अकाउंट वापस मंगवाने का सब आप लोग तो प्लानिंग करके आए थे। आज अमृतसर की हम नहीं सुनेंगे आज हम लोग अमृतसर की नहीं सुनेंगे, आज हम लोग कनाडा ही जाएंगे। बट फिर ये लोग आए, इनको प्रॉपर प्लानिंग मैंने समझाया। मैंने बोला सर देखिए ठीक है, कनाडा का प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है, 10, 15, 20 दिन में सब खत्म हो जाता है, ऑफर लेटर आ गया, ऑनलाइन वीज़ा फाइल रख दो, बायोमेट्रिक दो, वेट फॉर 1 or 2 months यू गेट द वीज़ा। बट जर्मनी में मतलब बोलते हैं ना कि अगर जर्मनी में आपने वेट नहीं किया, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं किया, वो बोलते हैं जिद्दोजहद नहीं करी तब तक मज़ा नहीं आता है। एंड जर्मनी में यू हैव टू अर्न द डिग्री, आपको जर्मनी में डिग्री मिलेगी नहीं, यू हैव टू अर्न दैट डिग्री। इन अदर कंट्रीज सी आई डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्रीज लाइक स्टडीइंग इन कनाडा और समथिंग लाइक दैट। आई स्टडीड इन जर्मनी, आई नो अबाउट हाउ जर्मन डिग्रीज आर गिवन। सो उस टाइम पे मैंने समझाया एंड यस फिर सर आप क्यों समझे थे, मेरे को आज तक पता नहीं लगा, पूरा डिसाइड कर गए थे तीनों जने सर कनाडा कनाडा कनाडा। एंड फिर सर ऐसा क्या हुआ मिलने के बाद फिर आप जर्मनी में ही 1 महीना वेट किया? उसमें 2 वजह थी। एक वजह ये थी कि एक तो आपने फिर से मुझे रिवाइज करने के लिए दूसरी और जगह जाने के लिए समझाने की कोशिश की कि भाई आप कनाडा मत जाओ, और दूसरा
उस टाइम पे आपने मुझे एक एग्जांपल दिया कि कोई भी एक जगह खड्डा खोदा जाता है, 90 फटके मारने पर पानी नहीं निकलता, आप निराश होकर हट जाते हो और 91 फटके पे पानी निकल आता है। तो जो 91 वाला फटका मारने वाला होता है वो क्रेडिट ले जाता है। वही एक सीन आपने मुझे थोड़ा रिमाइंड कराया। और दूसरा, तख्तेश का जो पैशन था कि जाना तो जर्मनी ही है, अदरवाइज आउट ऑफ इंडिया जाना ही नहीं है, मास्टर का ही प्रोग्राम कैंसिल करना है, तो वो किसी भी सूरत में मैं चाहता नहीं था, क्योंकि मुझे उसको मास्टर करा के उसका ब्राइट फ्यूचर दिख रहा था या देखना है। तो मैं उसके ब्राइट फ्यूचर के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना पीछे किया था ना आगे करूँगा। तो उसके ब्राइट फ्यूचर के रास्ते में मैं कोई अपनी तरफ से रुकावट नहीं डालना चाहता था। ये मेरा मोटो था, हम दोनों का रादर, और मुझसे ज़्यादा उसकी मदर को ज़्यादा था कि भाई बच्चा अपने पैरों पे अपनी पहचान बनाए। आपका लड़का इस तरह आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, खुद तख्तेश त्रिपाठी अपनी आइडेंटिटी हो और वो उसको जर्मनी में मिल सकती है। उसको कमानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो मेहनत का उसको अच्छा स्वीट फल मिलने वाला है। उन दिनों क्या है कि सुबह उठो और जब सुबह से पता ना हो कि आज के दिन में करना क्या है, और ऐसे जब बहुत सारे दिन निकल जाए तो एक वॉइडनेस फील होती है। तो सब मन मना के आपसे मिलने आए कि भाई आज तो ये बात करेंगे, लेकिन एक ऐसा एक कॉर्नर, लेकिन एक कॉर्नर ऐसा होता है कि नहीं, इतना टाइम, इतना एफर्ट, सब कुछ इन्वेस्ट किया है, तो एक रिजल्ट सुन के जाते हैं। और आपको विश्वास था कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ही, और आपने समझाया, 1 महीना वेट किया, एंड या एग्जैक्टली बेस्ट ऑफ। आज तक जितने भी स्टूडेंट्स का जर्मन स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया है, बहुत मुझे नहीं याद किसी का रिजेक्शन हुआ, या रिजेक्शन आया भी होगा तो रिमॉन्स्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन लेके हम लोगों ने वीज़ा लिया है। इनके केस में भी ऐसा हुआ कि इनका यूनिवर्सिटी का लेटर एक्सपायर हो गया, जर्मन एम्बेसी ने मांगा कि नया लेटर दो। अभी नया लेटर था नहीं क्योंकि उसकी डेट ऑलरेडी चली गई थी, और अभी हम लोग एप्लीकेशंस कर रहे थे न्यू यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो उस केस में उन्होंने बोला कि नहीं, हैव टू अप्लाई फॉर द फ्रेश। हमने वो सब किया, फिर सेकंड लॉकडाउन आ गया, उस ऑफर लेटर की भी डेट निकल गई, बट फिर हमारे पास दूसरे मल्टीपल ऑफर लेटर्स थे। हमने कन्विंस किया, एंड यस, हम लोगों ने इनका जो वीज़ा है विद इन 1 मंथ, हमने बोला था कि 1 मंथ में आ जाएगा, प्लीज़ वेट, और इनका वीज़ा वो आ चुका है। तो तख्तेश, आप मुझे ये बताइए कि 1.5 साल आपने वेट किया जर्मन वीज़ा के लिए, तो उन 1.5 साल में आपको कितनी बार ऐसा लगा कि नहीं यार, जर्मनी नहीं जाना, क्योंकि इतना सारा ब्यूरोक्रेसी है, बार बार ऑफर लेटर, अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं। क्योंकि देखो, ये जर्मन प्रोसेस का एक एक पार्ट है, क्योंकि अगर आपने आज एप्लीकेशन किया और जब भी एप्लीकेशन उनके हाथ में आता है और उस ऑफर लेटर की डेट निकल जाती है, देन दे विल डेफिनेटली आस्क यू कि यार ये तो डेट चले गई। तो अभी इस पूरे ड्यूरेशन में आपने क्या सीखा? आप अपने जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहते हो? टिप्स में मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि कोविड-19 सिचुएशन है, तो डेफिनेटली वन शुड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, मीन्स रियली अ लॉट ऑफ पेशेंस, और सिंसियरिटी, मीन्स यू शुड बी रियली सिंसियर। क्योंकि एक लेस एफर्ट मीन्स आप बहुत पीछे हो जाएंगे, और 2 ज़्यादा एफर्ट और आप बहुत आगे निकल जाएंगे। मतलब यहाँ एक सिंपल सा केस है। तो और आप लर्निंग, एक्सप्लोरिंग, ये सारी चीज़ें के लिए बहुत पैशन होना चाहिए आपको। और कभी भी ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए कि इतना वेट किया है, इतना टाइम, मनी, सब कुछ इन्वेस्ट किया है, तो मैं बस गिव अप कर दूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने इस 1.5 साल में समझी, वो ये है कि गिव अप नहीं करना है। डेफिनेटली कोविड-19 की वजह से हर सुबह ऐसा फील होता था कि आज के दिन में कुछ करना नहीं है, बहुत वॉइड फील होता था। लेकिन मम्मी पापा थे जो मुझे समझा देते थे, और ख़ास करके आप, लेकिन आप मीन्स अमृत सर इज़ रियली बिजी गाय, लेकिन उन्होंने कई बार मुझे फ़ोन पे लाइक मिनट्स टू मिनट्स हमारी बहुत सारी बातें हुई हैं। कभी कभार वो मुझे ऑफिस में बुला के मुझे मोटिवेशन और इंस्पायर करते थे। तो मतलब ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन जो मैं टिप्स की बात करूँगा तो मीन्स एट द वेरी फर्स्ट यू शुड बी सिंसियर, you should be passionate about your learning and exploring your field, to having a mindset of conquering your field, and most of all you should need patience. Means German student visa process is a bit lengthy, तो कुछ कह नहीं सकते। कोविड-19 सिचुएशन की वजह से बहुतों को वेट करना पड़ा है, लेकिन पेशेंस एक प्राइम रिक्वायरमेंट है जो हर एक स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। तो
सो तक्तेश, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए अबाउट द सर्विसेज ऑफ अमृतपाला विजन। आपको कौन से सर्विसेज जो है वो अमृतपाला विजन ने दी है? 2019 में जब मैं अमृतसर से मिलने गया, मैं और मेरी फैमिली मिलने गई, उन्होंने हमको जर्मन एजुकेशन लैंग्वेज के बारे में सब कुछ समझाया। एंड आफ्टर 20 days आई हैड टू स्टार्ट विथ माई लैंग्वेज कोर्स, and as I said that they provided German faculty, so they had an intensive course. So we all students, like 10 to 12 students, we all completed A1 and A2 levels in just 3 months, and after that visa procedure started. तो उन चीज़ों में अमृत सर ने, अमनप्रीत मैम ने और उनकी पूरी टीम ने डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन प्रोसीजर में हर तरह से हमारी हेल्प की है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं तो एक एक्सक्लूसिव स्टूडेंट रहा हूँ अमृतसर का, तो मेरी प्रोसेस तो काफ़ी लंबी चली है। काफ़ी बार डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिवाइज डॉक्यूमेंट्स मांगे, काफ़ी बार उन्होंने ऑफ़र लेटर मांगे, क्योंकि हर बार टाइमलाइन की वजह से वो एक्सपायर हो जाते थे, फिर से दोबारा मांगते थे। तो हर बार मीन्स आई शुड डेफिनेटली से कि टाइम मैनेजमेंट और पंक्चुअलिटी अमृतपाला विजन की मैंने फील की है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, इज़ डेफिनेटली ग्रेट। क्योंकि जब भी वो लोग डॉक्यूमेंट्स मांगते थे, कॉन्सुलेट जब भी डॉक्यूमेंट्स मांगते थे, तो एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड में वो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके उनको आगे प्रोवाइड करने होते थे। तो ये चीज़ें स्टूडेंट के लिए बहुत टफ होती है, ख़ास करके तब जब आपकी प्रोसेस इतनी लंबी रही हो। तो मैं इसके लिए सही में आपका बहुत ही थैंक यू कहना चाहूँगा इसके लिए। और मैं एक बॉटम लाइन ये कहूँगा कि इफ़ यू आर रियली प्लानिंग टू स्टडी इन जर्मनी, जस्ट गेट योर सेल्फ टू अमृतपाला विजन एंड लीव योर सेल्फ टू देम एंड दे विल हैंडल एवरीथिंग। थैंक यू। So, Taktesh, if I would say you or request you to rate Amritpala Vision on the scale of 10, where 1 is worst and 10 is good. If there would be more than 10, I would definitely give more than 10. So it's definitely 10 on 10. Thanks a lot. Yeah. Thanks a lot. And if I would, request you to say 5 words for Amritpala Vision, what you would say? I would be lacking words, but I would still try that because to describe you in some few words, I don't think that it's possible for me to say. It's very overwhelming. Yeah, it's really overwhelming because I have felt that To express that in words is really feeling in word is absolutely, because 1 year and 7 possible. months is not a small time. It's really a big time. Means when you spend this much time with someone, you just become a family, and I've actually felt that. So those 5 words would be like he's a man of integrity, firstly. Second, sincerity. Third is discipline and punctuality. Fourth is supportive, motivating, inspiring, and lot more than that. And fifth, it's the key word is the path provider. So थैंक्स अ लॉट। सर, आप हमारी कंपनी के बारे में, अमृतपाला विजन के बारे में क्या कहना चाहते हो? अमृतपाला विज़न के बारे में मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि जिसके लिए कोई अल्फाज ही नहीं है। कि मैंने यथा नाम तथा गुण, तो अमृतपाला विजन, तो नाम में सब कुछ है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जो फीलिंग, जो एक्सपीरियंस अंदर है, वो वर्ड में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं थैंक यू वर्ड बहुत छोटा फील हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैंने 2019 में जब फर्स्ट मीटिंग की, उस दिन शायद एक कॉमर्शियल एंगल से मीटिंग की होगी कि भाई एक कंपनी मुझे प्रोवाइड कर रही है लैंग्वेज कोर्सेज, मेरा वीज़ा प्रोसेस करवाएगी, ये है। तो उस टाइम का जो थॉट प्रोसेस है, और आज 2.5 साल बाद में जो सामने बैठा हूँ, 2.25 साल 2.5 साल बाद, तो मुझे ये पूरी जो जर्नी है उस दौरान में बल्कि ऐसा फील हुआ कि इतना शायद मेरा सगा भाई होता तो इतना मुझे सपोर्ट नहीं करता, मेरे साथ खड़ा नहीं होता। थैंक यू सर, थैंक यू। तो उसमें फिर अल्फाज नहीं आते, वहाँ फीलिंग आती है। थैंक यू सर। मैम, आप क्या कहना चाहते हो? जैसे कि मैम आज चुप बैठे हैं, बट जनरली क्योंकि एक माँ जो होती है ना, वो अपने बेटे का दुख बहुत अच्छी तरीके से और जल्दी समझती है। अंकल का मुझे फ़ोन जब इनका स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस में गया तो सिर्फ 5-10 बार आया होगा, बट तक्तेश और मैम का फ़ोन आप समझ सकते हो हर 1 महीने में 2-3 बार, सर कहाँ पहुँचा,
क्या हुआ, तक्तेश मेरा बेटा टेंशन में है। मैंने बोला देखिए मैम अभी एम्बेसीज बंद है, सब कुछ बंद है। तो मैम आप, मुझे अभी भी याद है, आज आप चुप बैठे हो, बट आज तक जितने फ़ोन आपने मुझे किए हैं, तो आप बताइए कि अभी आपके पास वीज़ा आ गया है, सब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। तक्तेश जब बोर होके फ़ोन करता था तो और आपके साथ बात करता था और आप बोलते थे कि हो जाएगा, तो 1 महीना आराम से कट जाता था उसका। मुझे याद है, क्योंकि ये बस एक ही वर्ड में कि अमृत सर ने बोला है कि हो जाएगा, तो 1 महीना आराम से कट जाता था। ये मुझे फ़ोन करते थे तक्तेश के सब प्रॉब्लम्स मुझे बताते थे कि सर देखो ये हो गया, 1 महीना चले गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर मेरे को सिर्फ 3-4 बार इनको 3-4 बातें ही समझानी पड़ती थी कि तक्तेश देखो ऐसा है, एंड ये फिर से मोटिवेटेड हो जाता था, फिर से वेट करता था कि कब लॉकडाउन खुलेगा और कब मेरा वीज़ा आएगा। धीरे धीरे उसका गोल हो गया। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि एक बार कभी ऐसा हो जाता है ना कि नहीं जाना है तो अभी जर्मनी जाना है, कुछ भी हो जाए जर्मनी जाना है, और बहुत सारे, और आप तो लकी थे कि आपको इतनी जल्दी डेट्स मिला, सब कुछ हुआ, तो भी थोड़ा टाइम लगा, बट आप बहुत लकी थे। जनरली आप देखोगे जर्मन एम्बेसी की आज की डेट में 7-5 मंथ्स का वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो मैम आपको अमृतपाल विजन की सर्विसेज आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत खुश है हम लोग, इतने टाइम के बाद बहुत खुश है। थैंक यू मैम। सर अभी जैसे कि मुझे आपने बताया था कि आपके कोई फ्रेंड ने अमृतपाल विजन का नेम सजेस्ट किया था, और आप हमारे को मिल रहे हैं। जनरली बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमको मिलते हैं, फिर 1-2 कंसल्टेंसीज में दूसरी जाते हैं। मुझे नहीं पता, आज तक मैंने आपको पूछा भी नहीं है कि आप मेरे को मिलने के बाद कोई दूसरी कंसल्टेंसी में गए थे या नहीं गए थे। आई डोंट नो, अगर गए थे तो क्या एक्सपीरियंस था, क्यों आपने हमको सिलेक्ट किया? एक चीज़ मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड के फ्रेंड का लड़का जर्मनी में जो गया था, तो उन्होंने मुझसे तो बात की, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड ने, कि ये हम उम्र है। उसके लड़के के पास जर्मनी से मेरे लड़के को फ़ोन करवाया, आपका नाम एड्रेस दिया और हमें आपसे मिलने के लिए जो बोला गया। तो जो मेरे फ्रेंड के साथ में मेरे रिलेशन है, जैसे मेरे उनके साथ रिलेशन है, वैसा ही मेरे फ्रेंड का उसके फ्रेंड के साथ रिलेशन है। तो एक हमारा एक ट्रायंगल बन गया। तो वो ट्रायंगल इतना मजबूत है कि दूसरी कोई जगह जाने का, सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हम कहीं पे अप्रोच ही नहीं किए, वहाँ से एड्रेस लिया, यहाँ मिले, यहाँ से डिसीजन, और यहाँ से आपकी ऑफिस छोड़ने से पहले हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया। Amritpal Vision was the very first and last consultancy we visited. Thank you. So सर आप जो स्टूडेंट्स हैं या तो जो पेरेंट्स हैं जो अपने बेटे को जर्मनी भेजने का प्लान कर रहे हैं, या कोई भी स्टूडेंट जो जर्मनी जाने का जो प्लान कर रहा है, क्योंकि इस पूरे सिचुएशन में आपने भी बहुत जो है मुझे सपोर्ट किया, सो दैट मैं इन दोनों को समझाऊं कि नहीं सब कुछ हो जाएगा, एकदम टाइम टू टाइम हो जाएगा। तो सर आप स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहते हो? मैं हर एक पेरेंट्स को और हर एक स्टूडेंट को यही कहना चाहता हूँ कि जर्मनी जाना अगर आप पैशन बना लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दूसरी सारी कंट्रियों की, क्योंकि उसके बाद ये 1.5-2 साल में कई लोगों के मुंह से कई सारी बातें सुनी है। कनाडा के लिए सुनी, अमेरिका के लिए सुनी, यूके के लिए सुनी, ऑस्ट्रेलिया के लिए सुनी। तो वो सारी सुनी सुनाई बातों पे या उनके एक्सपीरियंस उन्होंने जो शेयर किए, उसके बाद एक नतीजे पर तो मैं ख़ास तौर पे पहुंचा हूँ कि अगर जर्मनी जाना है तो आपको धीरज रखना है। आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए सबसे पहले धीरज और उसको गोल में परिवर्तित करना है। आपने उसको अगर गोल में परिवर्तित कर दिया, आप पैशनेट हो गए, तो जर्मनी जाने से कोई नहीं रोक सकता। सुना आपने? ट्रू, सही बात है सर, आपकी बात सही है। और सर जैसे कि इनका जो जर्मनी का जो प्रोसीजर था, तो वो ठीक है टफ है, बट आज की डेट में ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इनके साथ के जितने भी स्टूडेंट थे आपके, इनके बैच में 14-15 स्टूडेंट थे, और उन सबका वीज़ा लग गया था, क्योंकि वो सब कोरोना के पहले सबका उनका प्रोसेस खत्म हो गया था, चल गया था। बट जनरली जर्मन स्टूडेंट वीज़ा मिलना 1 से 1.5 या 2 महीने का मैक्सिमम टाइम है। इनके केस में 2 लॉकडाउन्स आ गए, यूनिवर्सिटी का लेटर एक्सपायर, पैंडेमिक ने पूरा मतलब सिस्टम उनका भी बिगाड़ के रख दिया, और उनका नहीं, पूरे वर्ल्ड के हर एक आदमी का बिगाड़ के रख दिया।
तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। Exactly. और डेस्टिनी यही थी कि भाई आपको 1.25 साल इंतज़ार करना ये पेंडेमिक में। मैं इसके लिए भी गॉड का शुक्रिया करूँगा कि ऐसी पेंडेमिक कंडीशन में लड़का हमसे अलग होता, दूर होता, तो जो टेंशन बनती वो टेंशन नहीं रही। मैंने वही सर को बोला था, क्योंकि मेरा बहुत एक फेवरेट मोटो है या मेरा मंत्र है, बोल सकते हो। 2 चीज़ मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, राइट। जितने भी आज ये इंटरव्यू जो भी मेरे स्टूडेंट्स गए हैं, मेरे 500,000 बच्चे आज जर्मनी में हैं, पूरे वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं, यही मैं आपको बता देंगे मेरा फेवरेट मोटो और मंत्र क्या है। हो जाएगा। हो जाएगा। और मैं हमेशा ये भी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। क्योंकि जैसे ही मेरे दूसरे स्टूडेंट्स, मतलब इनके ही फ्रेंड्स जर्मनी में गए, लैंड हुए, किसी का 10 दिन था, किसी का 2 दिन था, किसी का लॉकडाउन से सिर्फ 1 दिन पहले पहुंचे। मैंने बोला सर आप टेंशन मत लीजिए, वो आपके साथ है। पूरा दुनिया बंद पड़ा है, सब लॉकडाउन और फ्लाइट्स चल नहीं रही है, तो इसका डिले इसलिए हुआ होगा क्योंकि ये उधर जाके टाइम वेस्ट करे, उधर एक घर पे पड़ा रहे और उसको होम सिकनेस हो। इससे अच्छा वो आपके साथ तो है। और दूसरे बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि यूरोप घूमना है, जर्मनी घूमना है, बर्लिन घूमना है, और वो जो माइंडसेट से गए थे, और उस टाइम पे जर्मनी में लॉकडाउन इम्पोज हो गया था। तो मैंने भी सर को वही समझाया कि सर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये आपके साथ है। सो देयर इज सम गुड प्लान ऑफ गॉड, तो आप टेंशन मत लीजिए, और आप भी उसी डायरेक्शन में हमेशा आगे बढ़ना, और ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और हमेशा पॉजिटिव रहिए। और मेरा डायलॉग हमेशा याद रखना, हो जाएगा, डोंट वरी। सो सर आपको मिलके आज बहुत अच्छा लगा। तक्तेश, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपने एक्सक्लूसिव स्टूडेंट बोला, वो इसलिए क्योंकि 1.5 साल 2 साल आपको जो मैंने काउंसलिंग किया, मोटिवेशन किया हर चीज़ के अंदर, तो हमेशा आपको कभी भी ज़रूरत पड़े रिगार्डिंग जर्मनी और एनी करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ और प्रॉब्लम्स, आप मुझे बता सकते हैं। डेफिनेटली सर, एंड थैंक्स अ लॉट मैम, आप इधर आए और हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। एक्चुअली वी आर ग्रेटफुल। ये हमारा सौभाग्य, हमारा सौभाग्य एक्चुअली कि हमें ये हमारा जो एक्सपीरियंस है, फीलिंग है, वो शेयर करने का मौका मिला। थैंक यू सर। Hello students, I'm Taktesh Tripathi. I've got my German student visa with the help of Amrit Palavision. I did my A1, A2 and B1 with Amrit Palavision. Experience was simply great that I just can't put that into words. So if you're really planning to study in Germany, get yourself to Amrit Palavision, leave yourself to them, and they'll take care of everything. All the best and see you soon in Germany.